most of the now we need to understand about few important concepts, and that the number one concept is, okay, most of the people, okay, they had already given, okay, their remote control on someone else's hands. इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कृपया करके अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जीवन आपकी है, रिमोट कंट्रोल अगर आपने किसी और को दिया है, ओके ओके, मेरे दोस्त बोलते थे मुझे, ओके, अगर मैंने तेरी हार्ट ब्रेक किया है तो इसका मतलब कि तूने मुझे ही चाकू दिया होगा। अंडरस्टैंड दिस, ओके? if I break your heart, that means you had given me the scissor, or you had yourself given me the knife. Did you understand or not? You had given that power to them so that they can control you. Simple. And you can come out of that any time. Most important thing is, okay, everything does not happen only because of the energies. हर एक चीज केवल एनर्जी के मुताबिक नहीं होता. Many times we need to open the door by ourselves. हो सकता है कि वो दरवाजा अंदर से बंद हो सकता है कि वो दरवाजा कहां से बंद हो, अंदर से बंद हो. And that is the reason why I'm just telling many healers, before healing other people, if you did not protect yourself with such powerful mantras, the energy that is working for them will come to you, and that will take time to show on your system. It is like, when a part of your hard disk is been virus, ओके, एक छोटी सी वायरस आपकी पार्ट में कहीं पे लग गई, ठीक है ना, एंड दैट विल इवेंचुअली, दैट वायरस विल कवर ऑल अराउंड यू. ओके, आई मीन टू से, एंड आई जस्ट वाज टेलिंग दिस थिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. मैं बहुत बार उस चीज को ऑलरेडी समझा चुका हूं. ये बात इतनी सिंपल है कि यू आर कैरिंग दिस, आई मीन कपबोर्ड फ्रॉम हियर, ओके, ये जो बुक शेल्फ है आप कहीं पे लेके जा रहे हो, ओके, यू आर जस्ट टेकिंग दिस बुक शेल्फ टू द अनदर प्लेस, and then a small scratches happen over here, a small pin, okay, a small pin come to your hand, itna chota, okay, very tiny pin comes over here, and if you just leave it, what happened? After a few days, that will become bigger. After 1 month, that will become more bigger. After 1 year, you need to cut your hand, and after maybe 2 or 3 years, you will get paralyzed, and after 4 years, you will go. But from where that has started, वो कहाँ से start हुआ था? Only from this much. Are you clear or not? स्टार्ट कहां से हुई थी? इतनी छोटी सी चीज से हुई थी. अगर आपने उतनी छोटी सी चीज को अगर उस टाइम पे हटा दिया होता तो क्या आपके सिस्टम के अंदर वो घुस पाता कि नहीं ना? Now, in Nepal, okay, we call it, we just give the example of the English, okay, जो अंग्रेज थे, what did they do? They come is become like a needle, and they change themselves into the elephant. अंग्रेज जो चीज होते हैं, निडल होती है ना, वो बन के इंडिया के अंदर घुसे थे और हाथी बन के निकल गए. ओके, इवन नेगेटिव एनर्जी विल वर्क the same way. You did not find out that is entered inside you. But उसकी, okay, even during the class about the black magic, I told you that the most important thing is they will try to control over your brain. They will try to control over your emotions. They will try to control over your thought process. अगर आप उसको बचा नहीं पाते, ओके, आपके लाइफ में आप जितने भी कुछ भी कर लो ना, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी. You need to be mentally stronger. Are you clear or not? We cannot always responsible. I mean, we cannot always tell responsible for other people. हम हमेशा ना दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा सकते. उसने वो किया था इसलिए मैं हो गया. ओके,
यू कैन नॉट ओके मेक ओके, आप ना एक काली बिल्ली को ना रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते आपके लाइफ के बैड लक के लिए। Are you clear or not? You cannot tell, okay, that I saw that black cat and then get bad luck. तो हो सकता है कि आपने उस काली बिल्ली के रास्ता काट दिया था। अभी खाली बिल्ली बोलेगी क्या, आज इसने ना मेरा रास्ता काट दिया। काली बिल्ली जाके रोएगी अब घर में, आज इसने मेरा रास्ता काट दिया, अब तो मुझे बैड लक होने वाला है। आर यू क्लियर और नॉट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओके, दैट इज व्हाट वी हैव जनरलाइज बाय द डिफरेंट ओपिनियन। क्या किसी के पास उतनी ज्यादा टाइम होगी कि आपके ऊपर हमेशा कोई ऐसे ब्लैक मैजिक करता रहे? क्या और काम नहीं है कि उसके पास भी? उस चीज को ना आप लोग समझते क्यों नहीं हो? ओके, हमें दूसरे के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देने की जो बीमारी है ना, ओके, इफ समथिंग हैपन टू यू, you will start blaming the God. Oh, why God this? हे भगवान, ये मेरे साथ क्यों? उस बीमारी से जब तक आप निकलोगे नहीं ना, ये सचमुच में ये बीमारी है कि हम दूसरे के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी निकालते हैं। लाइफ आपकी, समझना इस चीज को। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्गर। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्गर होते, कोई भी आपके ऊपर ना, अगर आप चाकू ना देते, अगर आप वो हथियार ना देते ना, कोई भी आपके हृदय को तोड़ के नहीं जा सकता था। अब अपनी लाइफ की डोर, अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी कब कब आपके हाथ में लोगे? दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझ जानी चाहिए। फॉर एवरीवन, something has happened to you and you are still blaming other people because of this, my parents, because of husband, because of wife, because of children, because of government, okay, अभी तो करते करते because of global warming, अभी तो करते करते because of sun, okay, because of moon and because of astrology। देखो, there are so many reason। आप इतना रीजन देते ना, हीलर ना ऐसे है कि इतना ज्यादा रीजन आपको और ज्यादा थमा देते हैं, क्योंकि उनके लिए तो बिजनेस है वो। सॉरी टू से, हाँ ओके, ठीक है ना। और प्रॉब्लम किसको होते हैं? जो मेंटली सबसे वीक होते हैं। मेंटली स्ट्रांग होके तो दिखाइए आप। अगर आपने युद्ध नहीं छेड़ा है तो उनको युद्ध करने दो ना। लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। आप अपने कर्म करते रहो, ये मंत्र आपको हर एक जगह से निकालेगा, बचाएगा। एक छोटा सा बच्चा है, वो आपको पत्थर फेंक रहा है, ओके, आप भी बच्चे बन के ना उसके साथ लड़ने लग जाओगे ना, व्हाट विल हैपन? और आपको पता है कि वो छोटा सा बच्चा है, उसको फेंकने दो। और जितना भी फेंकेगा, वो जितना जोर से भी फेंकेगा, क्या आपको लगेगा क्या? नहीं ना। तो ना, यू नीड टू बिकम अ राइनोसरस, ओके, मेनी टाइम्स। अब यहाँ पे ना टाइगर बन के काम नहीं है। हमेशा टाइगर बन के आपकी एनर्जी कहाँ पे जा रही है? ये सचमुच में क्या वो मेरे ऊपर साइकिक अटैक कर रहा है, नहीं कर रहा? आपकी इमेजिनेशन कहाँ पे जा रहे? वहीं पे जा रहे। सो दैट मींस यू आर गिविंग मोर पावर टू देम ऑल द टाइम। आप अपनी पावर वहीं पे दे रहे हो। कहाँ पे दे रहे हो? किसके ऊपर दे रहे हो? जो आपके लिए ओके नेगेटिव सोच रहा है, जो आपके लिए नेगेटिव करता है, एंड यू आर गिविंग ओके मोर पावर टू देम। ओके, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, ओके, तो आपके पास केवल 25% पावर था, आई विल गिव यू 75 मोर, प्लीज, ओके, डू हार्म। अगर आपको याद ही नहीं करते, आप उसको भूल जाते और अपने काम करने के लिए लग जाते, व्हाट विल हैपन? उसकी एनर्जी अब आपकी तक नहीं आ रही है। नाउ मोर देन दैट, ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग, listen to me very carefully, everyone। most important thing that you need to understand today, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट अबाउट, leave everything whatever you are doing, I want you to see me,
Now I want you to hear me loud and clearly and put this everything on your mind. What I'm going to say right now, okay? उसको हमेशा जीवन के अंदर, जीवन में केवल दिमाग से सुनना नहीं है, हृदय तक भी उतारना है। फिर अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। सपोज ओके, मेरे पास फोन है यहाँ, ठीक है। सपोज आई हैव अ फोन विथ मी। इफ आई ऑन द फोन, व्हाट विल हैपन? आई विल गेट द रिंग। ओके, ठीक है ना। इफ आई ऑन द फोन, आई विल गेट द रिंग। I have a radio. If I on that radio only, okay, I can listen. Even before, okay, even if I don't have a phone, what will happen? मुझे सुनाई देगा क्या? नहीं ना। मुझे इसलिए सुनाई दे रहा है कि मेरे पास फोन है, right? I can listen because I get the ring because I have a phone with me, right? There was the vibration even before also. फोन ऑन करने से पहले भी था। क्या वो वाइब्रेशन मुझे सुनाई देती है क्या? नहीं ना। Did that frequency, did that vibration, okay, can I listen or not? No. In order to listen that frequency, in order to listen to that vibration, I should have some device with me. If you are getting that frequency, if you are getting that vibration, that means you have some device inside you. अगर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, इसका मतलब क्या? और जो मोबाइल है या वो रेडियो है, ओके, समथिंग टू कैच दैट सिग्नल इज इनसाइड यू, एंड until and unless that signal is inside you, no matter whatever you do, that will always catch the frequency, that will always catch that vibration again and again. Either you need to make it switch off, या तो स्विच ऑफ करके रख दो। इफ आई स्विच ऑफ माई मोबाइल, ठीक है, इवन हाउ मच द वाइब्रेशन इज ओवर देयर, ओके, हो सकता है कि सो दैट कैन बी अबाउट द वोडाफोन, अबाउट द एयरटेल, अबाउट जियो, एवरीथिंग। डज दिस विल कैच दैट फ्रीक्वेंसी? नो, आई कैन ओनली कैच इट बिकॉज आई हैड ऑन इट। मैं इसको इसलिए उसको पकड़ पा रहा हूं कि क्योंकि मैंने उस डिवाइस को ऑन किया हुआ है। तो नेगेटिविटी को कैच करने के लिए क्या चाहिए? there is some type of device is there inside you, there should be some type of negativity inside you, that's why that is catching that all again and again and again. Clear है या नहीं? Are you clear or not? That is the most important thing. Either you switch it off, तो उनको जितने भी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी पे फेंकने दो ना। Even if they send that frequency of 5G also, let them do it. When your mobile phone is switched off, okay, does that mobile phone can automatically will open and start moving? No, ना। क्लियर है या नहीं? बताइए पहली चीज तो। आर यू क्लियर ना? कंसेप्ट क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपके शरीर में, ओके, इफ नेगेटिविटी इज देयर, सो दैट मीन्स द रीजन इज यू, नॉट देम। पहली चीज तो स्टार्ट टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी से आपको भागना नहीं है। And I don't care about what has happened to your past, okay? Because I always believe your past is not your future. आपकी past आपकी future नहीं है। Your past is not your future. आपने जो कुछ भी किया होगा। Now, again, remember this. Do you know about Rishi Vishwamitra, who is the founder of Gayatri Mantra? Right? सुना है ना उनके बारे में? How many people he has killed? How many rishis he have killed? How many? Yes. But still, after doing all those things, if you can still become a rishi, why cannot you?
अगर वो हजारों लोग को मारने के बाद भी ऋषि विश्वामित्र बन सकते हैं, परशुराम हजारों लोगों को मारने के बाद भी एक ऋषि बन सकते हैं, आप क्यों नहीं? उतनी ज्यादा गलती तो नहीं की ना आपने। When you compare yourself, okay, with those great people, have you done that type of scene of killing other people? No, na. If they can forgive themselves, if they can move on in their life, if they can change themselves, why cannot you? अगर वो अपने आप को बदल सकते हैं, आर यू क्लियर है नॉट? उन्होंने कितने लोगों को मारा, फिर भी हम उनको भगवान मानते हैं ना, because they have changed. And that is the main reason why you need to understand your past is not your future. Whatever you have done in your past, let's forget about them. No matter whatever, either good or a bad, okay, who care about it? Your past is not your future. हो सकता है कि आपने कुछ गलत किया होगा. Maybe in life you may have taken some hard decision. Maybe in life you have done some mistake. Maybe in life, okay, you had a hard choices to do. And everyone learn from their mistake. Everyone learn from their guilt. Everyone learn from those moments of life. इतना ही तो simple है. Why should you take that always, okay, and then, okay, so make that like a bigger stone? That should not be your future. Past हो सकता है, but वो आपकी future नहीं है. You need to come out of that traumas. You need to come out of those guilt. You need to come out of these emotions. आपको वहां से बाहर निकल के आना है. हो सकता है कि अपने लाइफ में कुछ हार्ड डिसीजन किए होंगे. हो सकता है कि अपने लाइफ में कुछ उस पर करके गलती किया होगा. और गलती किससे नहीं होती? हम गलती से ही तो सीखते हैं ना. We learn from our mistakes. And we always try to do the best. तो हमें उस मोमेंट में जो आपने किया था, ओके, हो सकता है कि you had never share with anyone, ओके, आपको किसी को शेयर करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है ना? That is not your part. That should not be your future. बस बात इतनी है कि आपने किया होगा. That's all. हो गया. अगर एक छोटे से पत्ते भी ईश्वर के जो इशारे पर नहीं चल सकती, तो कि आपका कर्म भी उसके इशारे के बगैर चला होगा. Even a small leaf cannot move without the power of a God. Thus, your karma, okay, whatever you have done, okay, क्या उसके पीछे उसकी इच्छा नहीं थी होंगी क्या? Man, when he was doing all those things for you, so why should you take that guilt? तो उनको बोल दो ना, आपने करवाया था तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ले लो. You should come out of that. पहली चीज तो यही चीज है, इंपॉर्टेंट चीज. सबसे ज्यादा यहाँ पे लोगों के अंदर यही चीज है कि मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, ओके, उसके साथ ऐसा हुआ अभी तक. You must of you are still taking those type of feelings with you. Forget about them. Leave all those things because they are not going to help you. ठीक है ना? Nobody is suffering because of the karmas, okay? Tell us every second, okay, you have a power to change it. Every second you have a power either to stay there, either to move forward. So whatever you choose now, don't blame that karma, okay? Tell us though, all the time. Most of the people, okay, the more they talk about the karma, they will go inside it. जितना ज्यादा आप कर्म को दोष दोगे ना, आप कर्म के अंदर घुस जाओगे. The lesser you know about the karma,
यू कैन रिमूव फ्रॉम इट, आप वहां से बाहर निकल सकते हो। और कर्म ने किया क्या है? only because you remember all those things, so that's why you are suffering. Okay, you are suffering only because your thought process, that's all, simple सी बात है। you are suffering only because of thought process. So let us not be the judgmental, हमें ना जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम अपने आप को जज नहीं कर सकते, दूसरे को जज करने के अधिकार ना हमारे अंदर नहीं है। लेट देम डू व्हाट एवर दे डू, हमें अपने काम करना है, हमें अपने प्रोटेक्शन करना है, और वो इस चीज को ना स्विच ऑफ कर दो। द लेस यू टॉक अबाउट देम, यू आर गिविंग लेस पावर। जितना ज्यादा आप उनके बारे में कम बात करोगे ना, उनकी एनर्जी आपके ऊपर कम आएगी। द मोर यू थिंक अबाउट देम, द मोर यू टॉक अबाउट देम, द मोर ओके यू गिव द क्रेडिट टू देम। आपने क्या बोला? क्रेडिट दे दिया। वो हमेशा मेरा काम को रोकता है, क्रेडिट दे दिया ना। अभी कुछ होने ही वाला था, आपके दिमाग में क्या क्या था? यू हैड गॉट अ बैड ट्रिगर, बस। क्या था? यू गॉट अ बैड ट्रिगर, एंड नाउ व्हाट हैपन? इफ यू जस्ट सी दैट पर्सन, अबे आपका काम तो हो गया। उसने कुछ किया ही नहीं था, जस्ट लाइक दैट ब्लैक कैट। उस काली बिल्ली ने आपको क्या किया था? नहीं ना। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ना यहाँ पे ना, ओके, तो लोगों की थॉट प्रोसेस ऐसी है, दे वांट, ओके, दे वांट लाइन टू बी अ वेजिटेरियन, क्योंकि वो चाहते हैं कि लाइन भी ना जैसे वेजिटेरियन की तरह रहे। वो तो हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट चेंज लाइन, ओके। आप लाइन को वेजिटेरियन बनने के लिए बोल नहीं सकते। एंड यू टेल प्लीज चेंज योरसेल्फ, प्लीज चेंज योर, प्लीज मोटिवेट योरसेल्फ टू ईट दिस फूड। मैंने अपनी जो मेरी गॉडफादर है, आई हैड सीन, ओके, लास्ट few months of his life, he had never taken vegetables, okay, and whenever I and my mom cooks the vegetable, he say, okay, so he said that this is the food of a birds, ये तो जो चिड़िया का खाना है, तो मैं क्यों खाऊं? He had never ate, okay, even before he died. अब जापान में तो ज्यादा से ज्यादा उसे चलती है, सुशी चलती है, so even they don't need the teeth to eat, it is okay. But you cannot change some people and accept that, okay. What you can do, you can only change yourself, बस। आप किसी को नहीं चेंज कर सकते, सिंपल सी बात है। तो what I need to do for him, I need to, okay, make some plan for him so that we can start running itself। हम एक साथ में जाके रनिंग तो कर सकते हैं, वॉट एवर ही ईट, ओके, रनिंग करेंगे तो आ जाएगा ना नीचे। बट नेवर एक्सपेक्ट दैट द टाइगर विल बी वेजिटेरियन, ओके। कभी भी ना उस प्रकार के जो जो मिथक कल्पना में मत जाइए कि टाइगर आपके लिए वेजिटेरियन बनेगा। तो उस प्रकार के उसके नेचर में है ही नहीं। यू कैनॉट चेंज अदर पीपल, यू कैनॉट टेल, ओके, द स्नैक टू, आई मीन, प्लीज ड्रिंक द मिल्क एंड प्लीज डोंट क्रिएट द पॉइजन। वो उसकी नेचर है। Even how much, okay, you put the stick on a cow, okay, cow did not give the poison, cow will always give the milk, that's all। वो काउ की नेचर है मिल्क देना, सांप की नेचर है बीज देना। अरे क्लियर है नॉट? गलती क्या होती है कि काउ को मार के आप बीज निकालना चाहते हो और सांप को मार के आप दूध निकालना चाहते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे। अरे क्लियर है ना? ठीक है ना? क्लियर है? कुछ लोगों को आप बदलना चाहते हो लाइफ में, और किसको बदलना नहीं चाहते? खुद को बदलना नहीं चाहते, ओके। यू वांटेड टू चेंज एवरीवन except one person, okay, that was you yourself, okay। So that is the same like, okay, you wanted to, I mean, you are telling the snack to create a milk, and you are telling the cow, okay, to create a poison, just like that is exactly the same way you are telling a lion to become a vegetarian,
ऐसा नहीं हो सकता। आपने कितने साल ट्राई किया, मान लो आपके घर में भी तो है ना, राइट? इवन ओके, देर इज आइदर अ टाइगर, आइदर अ स्नेक, आइदर अ काउ इन योर हाउस, है ना? नो नो, आई फॉरगेट टू टेल, बियर, बियर, भालू है ना? सोचा तो था ब्लैंकेट निकलेगा, निकला क्या था? भालू निकला था। डिड यू रिमेंबर दैट स्टोरी? एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ बियर टू चेंज टू द काउ? तो होगा नहीं। आइदर यू नीड टू लर्न टू लिव विद देम, आइदर स्टार्ट इग्नोरिंग देम, दैट्स ऑल। और उसके साथ शांति से कैसे रहना है जब तक आप सीखोगे नहीं, until and unless you are mentally prepared for it, nothing going to change in your life। पहली चीज तो समझ लीजिएगा। उनको भी समझ आ रहा है कि वो चेंज होने वाली नहीं है, तो समझ किसको नहीं आता? आपको नहीं आता, क्योंकि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, फिर भी आप बदलने के पीछे लगे हुए हो। क्लियर है? If there are few people, okay, who always do the tantric, let them do, because आप कुछ भी करो ना, उसको बदल नहीं सकते। What you can do, you can only start protecting yourself कि उसकी एनर्जी आपकी तरफ ना आए। तो फॉर दैट यू नीड टू स्विच ऑफ दैट रेडियो जहां से उनकी एनर्जी आती है। क्लियर है एवरीवन? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Swamiji have, I think, something to say. Okay, I request Swamiji to please unmute yourself, Swamiji. हेलो सर। Yeah. हाँ, 2-3 चीज मुझे बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने ग्रुप पे 10th जून लास्ट दिया है सब सारे होमवर्क सबमिशन के लिए। 10 जून इज द लास्ट डेट टू सबमिट द होमवर्क। जो होमवर्क इस डेट के अंदर नहीं करेंगे उनको अट्यूनमेंट या सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। ईमेल भेजने का टोटल प्रोसीड्योर हमने ग्रुप में दे दिया। देयर इज अ डिटेल प्रोसीड्योर हाउ टू सेंड द ईमेल एंड व्हाट टू राइट, एवरी डिटेल्स गिवन इन द ग्रुप। वो भी टाइम दिया है 15 जून के अंदर वो सारा डिटेल्स ईमेल पे, नॉट इन पर्सनल चैट इन टेलीग्राम, ईमेल पे भेजना। यू हैव टू सेंड थ्रू ईमेल ऑल द डिटेल्स फॉर अट्यूनमेंट एंड सर्टिफिकेट। जो भी डिटेल्स है, अगर कोई भी डिटेल्स नहीं मिलती है और जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे ईमेल अगर नहीं सेंड होता है तो उनके नाम लिस्ट पे नहीं होगी। तो बहुत केयरफुली, बी केयरफुल टू सेंड द ईमेल। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। सेकेंड थिंग, स्टिल मेनी पार्टिसिपेंट सेंड मैसेज इन व्हाट्सएप। वी डोंट चेक व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप में कोई मैसेज करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगी। टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, हम जरूर रिस्पॉन्स देंगे इमीडिएटली। अगर ना भी दे सके बाद में हम देंगे। और ग्रुप पे होमवर्क में न्यास के बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन है, सिंबल का पिक्चर भी है एंड वीडियो पे थोड़ा दिखने का प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए हमने अलग से पिक्चर देके विथ क्लैरिफिकेशन की क्यों कैसे ड्रॉ करना है। वी रिक्वेस्ट टू इम्प्रूव योर ऑब्जर्वेशन पावर ऑल्सो। हम आपको मदद कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू टू रेक्टिफाई, बट यू हैव टू रेक्टिफाई विद इम्प्रूविंग योर ऑब्जर्वेशन पावर और पेशेंस टू चेक द सिंबल एंड राइट विथ पेशेंस। आप एक बार भेजते हैं, हम करेक्ट करते हैं, सेकेंड टाइम आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होती है एंड दिस इज नॉट पॉसिबल टू चेक 324 सिंबल्स ऑफ एवरीवन। सो जब हम एक चीज को रेक्टिफाई कर देते हैं तो दूसरों को सिंबल्स की देखने की जरूरत नहीं है। जो मेन सिंबल ग्रुप पे पोस्टेड है उसको देख के थोड़ा ध्यान देके नया सिंबल ड्रॉ किया जा सकता है, बिकॉज बिफोर यू देयर आर मेनी स्टूडेंट जो ऐसे ही न्यास को देख के ड्रॉ किए और बहुत अच्छे से ड्रॉ किए। One more thing, still we are getting question how to submit homework. Where is the homework group link? I am really sorry. We will not send the link to anyone personally. बहुत बार हमने लिंक ग्रुप पे पोस्ट किए, थोड़ा कष्ट करके स्क्रॉल कर लीजिए, ग्रुप पे लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करके होमवर्क सबमिट करना है। मुझे बस इतना ही बोलना था सर, थैंक यू।
थैंक यू स्वामी जी, सब लोगों को समझ आ गया है ना? यस, हाँ। तो important चीज about NASA symbol is, okay, there should be, okay, whenever you are drawing a glass, there should be something like this. आपको क्या करना है, झटका मारना है वहां से, तो वहां से गोल घुमा के नहीं करना है, ऐसे करके आपको झटका मारना होता है. यस, नाउ, ओके, सो understand one very simple thing, okay. Okay, so whenever you are making that NASA symbol, okay, for 6 note, that is going like this, 6 time that is going like this, ठीक है ना? And at last, okay, that go like this, and then from there you need to, okay, take this way, like at last there should be like a C. क्लियर है ना? आप किसी चीज को झटका देके निकाल रहे हो, ठीक है? नाउ समझ लेना इस चीज को अगेन. What you need to do, normally Bakratundo and a NASA symbol has to be used together. NASA और बक्रतुंड को साथ में यूज करना होता है, ठीक है ना? फर्स्ट you will collect most of the thing with the root chakra, and then after that, okay, we need to do the NASA. बक्रतुंड से आपको क्या करना है, पहले नीचे लेके जाना है रूट चक्र तक, and then you will do the NASA after that. In many classes, okay, in many teacher tell that, okay, obviously, okay, if the energy can increase upward, okay, that is a good thing. But how many people has that capacity to increase their energy? कितने परसेंट ऐसे लोग हैं, those who know how to control the energies? अगर आपको अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, इमोशन विल बी अप एंड डाउन, ओके, रोलर कोस्टर है इमोशंस, ओके, एंड यू बिलीव दैट इमोशन आर एब्सोल्युटली ट्रू एवरीथिंग. और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या लगता है, इमोशंस आर ट्रू, ठीक है ना? एंड मस्ट ऑफ आवर डिसीजन आर आल्सो वेरी इमोशनल. डिसीजन लॉजिकल होने चाहिए थे, ठीक है ना? बट डिसीजन वर वेरी इमोशनल. You did everything because parents said, you did everything because your teacher said, you did everything because society said, you did everything because your husband or wife said, you did everything because your children said. Very इमोशनल पर्सन, ओके. और रोना पड़ता है कि क्यों, फिर बाद में, ओहो मैंने उस टाइम पे एक डिसीजन क्यों लिया होगा, पता तो आपको भी पहले से था. You know about it already, you had already sense about it, even at the first moment आपको पता था वो चीज, but still you ignore that. Clear? So that is the reason why for anyone can take the energy from up to down. ऊपर से नीचे कोई भी एनर्जी लेके आ सकता है. क्लियर है? फ्रॉम डाउन टू अप, ओके, फ्रॉम डाउन टू अप, आई मीन अप, सो दैट इज अ गुड वे, बट स्टिल मेनी पीपल कैन नॉट डू दैट. So that is the reason why you need to do it from up to down. Clear है? आपको क्या करना होता है, ऊपर से नीचे लेके आना होता है. सुजाता दी, थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट सिंस आई कैन नॉट राइट इट हिंदी, ओके, ना तो मुझे हिंदी में लिखनी आती है, मुझे बोलनी आती है, उसका मतलब ऐसी नहीं है कि मुझे हिंदी में लिखने भी आए, ओके. और हमारे एडमिन्स को भी ना ज्यादा से ज्यादा हिंदी में लिखना नहीं आता, ओके. सो नो हाउ टू राइट इन बंगाली, ठीक है ना? उनको बंगाली में लिख के भेजना है तो वो भेज देंगे. प्लीज, आई मीन, आप थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दैट वेरी सिंपल कंसेप्ट. You can pull any energy from up to down. ऊपर से नीचे ना आप किसी भी एनर्जी को लेके आ सकते हो.
देवता को भी नीचे लेके आ सकते हो, अप्सरा को भी नीचे लेके आ सकते हो, ओके, ठीक है ना। बट टेकिंग एनी एनर्जी फ्रॉम डाउन टू अप विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हमने न्यासा सिंबल को क्या करना है, हमें ऊपर से नीचे लेके आना है। And every times whenever you are doing it, okay, so that the size will be smaller, तो छोटा 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 होते आएगा, and at last, okay, whenever you are doing it, what you need to do, you need to just throw it on the ground from your root chakra। आपको क्या क्या करना है, okay, you need to shake it। you will take the wand in your hand, अगर आपके पास wand है तो wand से बना दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, from your root chakra you will shake it, all that energy down to the earth, as if there is a thunder। जैसे एक बिजली की कड़क की आवाज होती है ना, उस आवाज को सुनना है कि whenever that energy, whenever that power, okay, that you are shaking it, okay, onto the floor of this earth। ड्यूरिंग दैट इमेजिन करना है कि एक धमाका हो रहा है। आर यू क्लियर और नॉट? यस। सो बिफोर यूजिंग एनी सिंबल यू विल टेक अ एस इन योर हैंड, हाथ में रख ले लीजिएगा यस, राइट नाउ डू इट and chant the mantra 7 times and protect yourself। Do it right now। अरे बाबा, हाउ व्हाई दिस क्वेश्चन अगेन? It doesn't care whether you are in a menstruation or a sutar. It doesn't matter, okay, even if you are on a pregnancy also। That is a part of nature। वो नेचर की पार्ट है। That is the symbol, yes, that you still has the power to create someone। मंत्र चैंटिंग करते हुए फुक मारना है, आपको खुद करना है। You need to chant the mantra by yourself and then blow it। Mantra chanting should be 7 times, and every time you chant the mantra, you need to blow it 3 times।
Yawning is completely okay. बीच बीच में yawning आ सकती है, that is completely okay. Protect yourself, sir. If 7 times done, then protect yourself. 7 बार हो चुका है तो अपने आप को प्रोटेक्शन दे दीजिएगा. You can either put that in the 7th chakra or at least, okay, on your third eye, on your crown, or still on your throat. मिनिमम 3 जगह पे होनी चाहिए, मिनिमम. अगर 7 चक्र पे होती है अच्छी चीज है, अदरवाइज इट इज मिनिमम on your third, crown, throat. Now you may have any issues in your life. आपके लाइफ में जो कोई भी issues है, suppose that that can be related to anything, that can be related to the emotions, that can be related to the feeling, that can be related to the energy from someone else. और किसी और की एनर्जी भी हो सकती है. ओके, इफ यू आर फीलिंग दैट एनर्जी, अगर आपको किसी और की एनर्जी फील भी हो रही है, ठीक है ना, तो समझ लेना दैट द रिसीवर ऑफ दैट थिंग इज देयर. वो कहां पे, उस चीज की रिसीवर कहां पे, आपके साथ है. ओके, तो ना कोई भी चीज में इतना डीपली नहीं जाना चाहिए कि आपको ना वही चीज हर जगह पे दिखे. ओके, डोंट बिकम मैड लाइक एनीथिंग. ओके, it is because you need to many times use your simple logical brain, simple logical mind. Suppose there are some astrologer on our group, so whatever, okay, they will talk about the astrology all the time, हर बार. okay, because of my astrology, because of this house, because of this planet, because of this thing, because the effect. okay, इतना कुछ explain करते हैं ना. The more you talk about them, your planet will start acting differently. पहली चीज तो यही है. और आपको एस्ट्रोलॉजी तब तक नहीं देखना है जब तक उसकी जरूरत ना हो, जब तक आप कोई चीज की निदान आपको मिलना नहीं है. डोंट टॉक अबाउट इट. देयर आर सम फ्रेंड who are into the vastu. okay, wherever they say something, they will say, okay, this direction is our there. वहीं पे बस एवरी टाइम कहीं पे भी जाएंगे उनकी एंटीना ना हमेशा खड़ी होगी. ठीक है ना, समझ लो ना, उस तरीके एंटीना, इसको बोलते हैं मानसिक रोग. सॉरी टू से, this is called a mental disease because your antenna is open all the time where there is not necessary. It doesn't matter, okay, whatever you have learned. okay, that power is more stronger than your knowledge. Many times, okay, I had seen people but vastu is completely, okay, completely इतना खराब है, फिर भी they are living a good life. Many times किसी किसी की एस्ट्रोलॉजी ऐसी होती है ना, ओके,
कहीं से भी नजर नहीं आता कि वो वहां तक पहुंच सकता है, बट यस दे कैन बी देयर। एंड मेनी टाइम्स some people are they are so good in astrology कि उनको राजयोग से लेके हर एक के योग 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 हैं, बट उनको कोई भी चीज नहीं मिलता, बिकॉज द एनर्जी दैट इज कंट्रोलिंग यू इज मोर पावरफुल than what you see। पता नहीं कि आपके पास कौन सी शक्ति हो ऐसी है जो आपके पास खड़ी है, और वो शक्ति वो एस्ट्रोलॉजी को भी चेंज कर सकती है। वो एनर्जी कि वो शक्ति जो आपके पास आने वाली है वो हर चीज को बदल सकती है, द एनर्जी। एंड इसीलिए ना ओके व्हेन यू सी द चार्ट ऑफ द आई मीन योगीज यू विल बी सरप्राइज हाउ कैन ही बी योगीज, बिकॉज वो चार्ट में तो है ही नहीं। ओके व्हेन यू सी देयर हाउस वो कहाँ पे रहते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, ताकि छोटी सी जो वो चीज होती है ना वो कहाँ पे रहते हैं, हम तो जाके शमशान में रहते हैं। अब शमशान की अगर आप वास्तु देखेंगे तो होगा क्या, वहां पे तो केवल एमराज आते हैं, वहां पे तो केवल मौत आती है। तो यू कैन नॉट कंपेयर ओके बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स। अगर आप हर चीज में उसको धकेल रहे हो, समझ लेना आपको भी वो रोग लगी हुई है। Obviously maybe I'm not telling that is a good or bad, okay, so that is the same disease like संजय दत्त को हुआ था मुन्ना भाई MBBS 2 में। maybe that film was for a good reason, but there are many people who will see exactly like him in many cases। एक चीज में घुस गए ना, फिर वही चीजें आपकी ओल्ड बन गई, उससे बाहर भी संसार है, समझ लेना उस चीज को। एंड how much percentage of the knowledge of that subject do you have? जो भी सब्जेक्ट है उसकी कितनी परसेंट आपके पास है, 0.0001%। फिर भी आपको लगता है कि आपने अगर उसी को अपना संसार बना दिया तो क्या होगा। आर यू क्लियर और नॉट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसीलिए ना ओके नेवर जज एनीवन कि आप कहां से जजमेंट कर रहे हो, किस चीज के ऊपर जजमेंट कर रहे हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है। इवन आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स राइट ओके देयर वाज इवन सच टाइम हैज कम टू मी, इसलिए मेरे लाइफ में भी उस प्रकार के टाइम आए थे, इसलिए मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं। when I was on my early 20s I believe that I have a different type of shaktis, I have done a different siddhis, I have done many sadhanas, I can do this thing, I can do that thing, okay। तब ना एक घमंड होता था कि मेरे पास है, वरना फिर गुरु की जो दंड पड़ती है ना, फिर कहाँ पे पीछे, ठीक है ना। गुरु की जो दंड पड़ती है ना, उसके बाद आपको ना रियलिटी समझ आती है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी है ही नहीं। अब जो हो वो भी उसकी कृपा से हो, जो आपके पास है that doesn't even belongs to you। ज्ञान किसने दिया, उसने दिया। नॉलेज किसने दिया, उसने दिया। शक्ति किसकी है, उसकी है। तो आप किसके ऊपर उतना ज्यादा घमंड लेके चल रहे हो। और वही सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, हाउ मच परसेंटेज नॉलेज यू हैव अबाउट दैट टॉपिक्स। तो उस तरीके की बीमारी से ना थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाइएगा, ठीक है ना। तो बीमारी दूसरों को नहीं, तकलीफ किसको देगी, आपको देगी। हर चीज के ऊपर यू कैन नॉट आई मीन रेस्पॉन्सिबल ओके मेक रेस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल। हर चीज के ऊपर तांत्रिकों के दोस्त आप नहीं दोस्त लगा सकते। हर चीज के ऊपर तंत्र ऐसा कर दिया, तंत्र ने ऐसा कर दिया, ब्लैक मैजिक ऐसा हुआ, जेलिसी ऐसी हुई, तो व्हाट अबाउट यू देन। तो आप आए क्यों हैं यहाँ पे, आर यू क्लियर और नॉट। You should take some stand in your life। दूसरी चीज, अंडरस्टैंड वन थिंग ओके, मस्ट ऑफ द गुरुज, जितने भी गुरुज हैं, गुरु की पावर तब समझ आती है उसको शिष्य को देखते हुए।
Guru will always known by their student. गुरु कितनी भी ताकतवर होगी, वो ताकत है या नहीं उसके शिष्य के माध्यम से पता चल ही जाएगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्या आपने अपने गुरु को कभी लाइफ में प्राउड किया या नहीं किया? क्या वो स्पार्क आपके अंदर है या नहीं? एंड व्हाट डू यू वांट टू प्रूव देम? क्या आप उनको क्या प्रूव करना चाहते हो? There is only one difference between the master and the student. Okay, there is only one difference between master and the student, that guru has failed more times than student had ever tried. बस डिफरेंस इतनी है. गुरु उतनी बार फेल हो चुका है जितने शिष्य ने उतनी बार ट्राई किया है. आर यू क्लियर और नॉट? तो समझ लेना, इसलिए कभी भी ओके घमंड आती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, दैट्स ऑल. बट उसको हमेशा पकड़ के रहने की जरूरत नहीं है. फीलिंग्स आती हैं, उसको भी पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है. रोलर कोस्टर होते हैं, रोलर कोस्टर में भी हमेशा आप नीचे थोड़ी जाते हो, ऊपर भी तो जाओगे ना. फिर उस टाइम पे मजे कर लेना. ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ I want you to start drawing the Bakratunda symbol at first. That can be related to the, just like today, that can be related to any mobile which is inside you, that is catching the energy all the time from those negative people, from those situation. हो सकता है कि आपके अंदर भी उसी तरीके का मोबाइल होगा जो उनकी एनर्जी को कैच कर रहा है. जब तक आप उस मोबाइल को तोड़ोगे नहीं अपने अंदर से, सिस्टम से, तो इसका मतलब ना फिर निकल के आईफोन को फेंकना मत, ठीक है ना? हाँ, यस, वेट राइट नाउ, स्टार्ट ड्राइंग द बक्रतुंड. Every time you'll imagine all those energies that is coming down, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर. If someone is catching you, if some energy is coming towards you, if you are feeling that energy, that means something is there inside you. अगर आपको फील भी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ आपके अंदर है. You need to use your hand. हाथ की यूज होनी चाहिए. हाथ यूज नहीं होगा तो काम नहीं करेगी. You need to move your hand. Yes. अपने आप को कर लीजिएगा प्लीज. जब तक मैं ना बोलूं तब तक करते रहिएगा. उतना जल्दी भी नहीं, स्लोली, विद दैट इंटेंशन दैट एनर्जी इज गोइंग डाउन. एनर्जी को लेके चलना है नीचे की तरफ.
डंडी घुमा के ऐसे ही होना था तो अभी तक आपके लाइफ में कुछ भी होता नहीं, ठीक है ना। उस एनर्जी को नीचे लेके जाना है, उस फीलिंग को, उस इमोशंस को नीचे नीचे लेके जाना है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक बनाते रहिए। एटलीस्ट आई कैन सी दैट एनर्जीज, कि वो एनर्जी जा रही है, नहीं जा रही है। रॉकेट की स्पीड से नहीं जाना है, टेम्पो की स्पीड से जा सकते हो। भी बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बनाते रहो, वक्रतुंड सिंबल को बनाते रहो। यूज योर हैंड एंड स्टिल मेक इट, टेक ऑल दोज इमोशन डाउन। जो जितने भी इमोशंस है, जितने भी फीलिंग्स है, जितने भी, जहां पे आपको वो एनर्जी फील हो रही है, उस एनर्जी को भी लेके जाना है। जहां पे आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, बनाओ दे गनुष, जब तक मैं ना बोलूं। वक्रतुंड बनाना है, उतने जल्दी नहीं बनाना है दिव्या जी, स्लोली स्लोली, इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ, उस फीलिंग को नीचे लेके जाना है स्लोली। You need to take that emotions with you, you need to take that feeling with you, you need to slowly, everyone, इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ, as if there is a spark in your hand and that spark is taking out all the energy, ऊपर से नीचे की तरफ उस एनर्जी को खींच रहा है। You need to use your hand, yes, slowly, yes, pull all those energies। भाग्यश्री जी उतना जल्दी नहीं करना है, स्लोली करना है। दिमाग में भी चलनी चाहिए कि दैट एनर्जी नीचे की तरफ आ रही है, दैट इज ऑन योर कंट्रोल, यू आर पुलिंग ऑल दोस एनर्जी विथ यू, नीचे की तरफ लेके जा रहे हो उस इमोशंस के साथ। वो इमोशंस दिख नहीं रहा है। पर्वत किरण जी और थोड़ा स्लोली, वो एनर्जी को आपको खींच के लेके जाना है नीचे की तरफ। संतोष बोरा जी, अपने फीलिंग्स को भी साथ में लेके जाना है कि एवरीथिंग इज गोइंग देयर इन रूट चक्र, हर चीज आप खींच के रूट चक्र की तरफ लेके जा रहे हो। especially when you are changing from one chakra to another chakra, there should be the emotion। गगन जी थोड़ा स्लो सर,
स्लोली उस इमोशंस को, उस एनर्जी को पकड़ते हुए लेके जाना ऐसा नीचे, as if you are cleaning, as if there is a broom in your hand and you are completely taking all those everything down नीचे की तरफ. कर लीजिएगा. यस यस यस. स्टिल स्मिता जी मोर फीलिंग के साथ जानी चाहिए, इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ. The more you will do, you will feel that okay, upper part will be more lighter and the lower part will be little heavier. ऊपर से जितनी भी हैवीनेस है उसको नीचे की तरफ लेके आना है. भैरवी जी आपको भी करना है, स्लोली करना, इतना फास्ट नहीं करना है. इमोशंस के साथ उस एनर्जी को ना, एज इफ यू आर कंट्रोलिंग दैट एनर्जी. दैट इज कंप्लीटली ओके. अभी नीचे लेके जाओ. नाउ स्टार्ट मेकिंग द NASA ऊपर से लेके. इफ स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग, ओके, कुछ चीज अभी भी छूट गया हो तो NASA से आपको क्या करना है कि when you root your root chakra, okay, you will okay start using your hand like this, okay, जोर से, strongly. You are taking that energy from your root chakra down to the earth like this, okay. ऊपर से आया, okay, घुमाते घुमाते just you are taking all the energy down, and when you reach that root chakra you will do like this. ठीक है ना. strongly you will be taking all that energy out from your system. आप अपने सिस्टम से सारे के सारे एनर्जी को क्या कर रहे हो. अब इसको भी उतने रॉकेट स्पीड से थोड़ी करना है. डू इट स्लोली. Do it slowly, yes. Take out all of it. Many times when you feel that there is much energies, okay, you don't have to only depend upon only 6 knot. You can even increase this NAS up to 21. आप 21 टाइम्स भी कर सकते हो. ऊपर से जहां जहां पे उसको नीचे की तरफ लेके आना है, वन बाय वन स्टेप बाय अनदर स्टेप, ओके. डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स. It can take many times. That is okay. But when you come down, there should be the power in your hand, as if you are throwing all those things. ऐसे नहीं करना है.
ऐसे नीचे की तरफ जाना है, उधर नहीं, सामने नहीं, यहां से आपको कहां पे फेंक रहे हो, ओवर हियर, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, आगे की तरफ नहीं, यहीं से नीचे। बहुत सारे लोगों के अंदर ना फीलिंग ही नहीं दिख रही, कर तो रहे हैं एज इफ आई एम टेलिंग, बट जो एक इमोशंस के साथ होते हैं ना, इफ यू आर रियली कंट्रोलिंग दैट एनर्जी, वो कंट्रोल ही नहीं दिख रहा है। हाथ तो हिला रहे हो, बट हाथ हिलाने से होता ना, ओके, हमारे नेता अच्छी तरह से हाथ हिला देते। कृतिका जी थोड़ा स्लोली। यस। दैट इमोशंस ब्रिंग एवरीथिंग डाउन, हर एक इमोशंस के साथ।
3 more times करें, 3 times more. संजय जी और लिटिल स्लो सर. Three times more. That's all. ज़्यादा नहीं. Now, chant the mantra 3 times again. 3 बार मंत्र को फिर से चैंटिंग करें. Now take a little water in your hand and then sprinkle अपने ऊपर छिड़क दीजिएगा थोड़ा सा पानी को. Little water, yes, with the mantra and then sprinkle it. अपने आपके ऊपर थोड़ा सा पानी से छिड़का दे दीजिएगा. Now, एक बार खड़े हो जाइए. Stand up and then okay, release all those things over here like this from every part as if you are dropping everything. ऐसे हर चीज को. क्या करना है, अपने आपके ऊपर थोड़ा सा पानी से छिड़क देना है और फिर उसके बाद खड़े होके अपने शरीर से क्या करना है, उस चीज को निकाल देना है. ठीक है. यस. If you have any question, you can raise your hand and I will take your questions. Yes, हाँ जी बोलिए. Unmute yourself. Namaste, sir. Sir, I had a query. Like अभी मेरा actually I was not able to do much because my body is hurting. कल vaccine लिया है. Sorry, I was not able to move myself much. And मुझे query ये था. I'm sorry, I'm not doubting you or something. But जब मैंने internet पे देखा तो वो लोग उल्टी दिशा में मतलब this side था and हम लोग ये side कर रहे हैं. Like वो spirals we are doing on the left side and they do it on the right side. Is there any specific reason for that, sir? देखो हमें क्या करना है, एनर्जी को नीचे लेके आना है. एंड मोस्ट ऑफ पीपल आर टेकिंग द एनर्जी अपवर्ड. ओके, हमें यहाँ पे
एनर्जी को ऊपर भेजना नहीं है, हमें क्या करना है कि सो दैट के हम उसको ग्राउंडेड कर दे, तो दैट एनर्जी कैन इवन रीबर्थ फॉर द न्यू लाइफ. Okay, so that is exactly like the process. Okay, many times when many people die, okay, people nowadays they write rest in peace. Okay, बट यहाँ पे अगर आप इंडिया में देखोगे, नेपाल में देखोगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैकुंठ बासोस. बैकुंठ में अगर उनकी स्थान हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना. रेस्ट का मतलब क्या है कि वो अभी भी भटका हुआ है कहीं पे, बस उसका आनंद मिल जाए और वो वहीं पे जाके रह जाए. ओके, सो we are following that. Yes, unmute yourself. हेलो सर. Yes. सर नेक्स्ट का जो सिंबल आपने ड्राइंग में दिया था, वहाँ पे लास्ट जो पोर्शन था वैसे सर्किल टाइप का था, लेकिन आप तो अभी बता रहे सीधा झटके से, मतलब स्ट्रेट करने से. लास्ट में ना आपको जैसे whenever you come to the मूलाधार चक्र, okay, so from here, okay, उसको गोल करना नहीं है, so like a C and then आपको चीज करना है, झटका देना. हाँ, लेकिन सर वो ड्राइंग में ना थोड़ा ऐसे घुमाना था लास्ट पार्ट. तो जो मैंने बोला है उसको फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है. ओके सर. हाँ जी, बोलिए. नमस्ते गुरुजी. जब मैं वक्रतुंड सिंबल बना रही थी ना, तो पूरा ऐसे एनर्जी ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से पूरा ऐसे आ रही है, कुछ यहाँ पे एयर टाइप का फील हो रहा था, और धीरे धीरे ना एकदम थर्ड आई पे हैवी होने लगा. जब न्यासा सिंबल बना रही थी ना, तो बहुत ज्यादा एकदम ना लग रहा था बस अब भी सो जाऊंगी ऐसे, बहुत आंखें नहीं खुल रही थी मेरी. और अभी लास्ट में जब आपने झटकने को बोला ना, तो ऐसा लगा बहुत जैसे बॉडी एकदम हल्की हो गई है ऐसे. हल्की हो गई है ना. हाँ, ऐसे फील हुआ एकदम कुछ एकदम लाइट सा. और उस समय बहुत पेन हो रहा था ना ऐसा सिंबल बनाते समय थर्ड आई पे. हल्का हुआ ना, तो हल्के के ऊपर फोकस करो ना. मैंने क्या बोला, जो चीज जिसके ऊपर फोकस नहीं करना है उसके ऊपर ही आप बात कर लेती हो बार बार. आई मीन लीव दैट थिंग, जिसके ऊपर फोकस करे. जहां पे जिसको छोड़ना है उसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जिस चीज को लेना है उसके ऊपर फोकस करेंगे. यस. हाँ जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा. ये मेरा क्वेश्चन है कि जो आज आपने कराया, whenever we do symbols we have to protect ourselves, वो ऐश वाला करके, और मतलब 7 टाइम्स फिर करना है. जैसे हमने आमिन सिंबल भी किया और हमने अलुमा सिंबल भी किया, तो क्या अलुमा सिंबल में तो हमने किया था, आमिन सिंबल में भी क्या हम ऐसा करेंगे? बिकॉज उसमें हम Really is now understand one very simple thing. Okay, whenever you start healing yourself or you are healing other people, until and unless you protect yourself, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको जो दिक्कत आ रही है, we don't know from where that is coming from. उसकी सोर्स क्या है हमें अभी अभी तक पता नहीं है. that source can be good, that source can be bad, so it is better for you to still, okay, टेक योर सेल्फ द प्रोटेक्शन एट फर्स्ट. जब तक आप अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं लोगे, तब तक हो सकता है कि अगर वो बैड बैड होगा तो उससे ज्यादा वहां से भेजेगा ना फिर, ठीक है ना. वी आर ओके गोइंग ऑन द क्रोकोडाइल माउथ, ओके, एंड इफ यू डोंट हैव अ हेलमेट और नाइफ और एनीथिंग, व्हाट विल हैपन. आई मीन अगर क्लीन कर सकते हो तो अच्छी चीजें क्लीन कर लो. आपके पास तो इतने कुछ की चीज है, राइट. क्लीन द स्पेस इफ यू कैन. हाँ जी, तरंग. सर नमस्ते सर. सर अभी जब हम लोग न्याय से सिंबल कर रहे थे, तो सर मुझे जब थर्ड आई से नीचे जाते हैं तो थोड़ा पेन होता है. थर्ड आई के बाद एनर्जी फील हुई. फिर उसके बाद सर जब सोलर प्लेक्सिस पे आया तो भी मुझे हल्का पेन हुआ, और फिर सैक्रल चक्रा पे पेन हुआ, लेकिन फिर मुझे रूट चक्रा में जाता हुआ कुछ समझ में नहीं आया. तो मैंने उसको 21 टाइम्स किया कि फिर मैंने उसको छोड़ा. तो क्या सर ये नॉर्मल है? दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल. ओके सर और एक चीज मुझे पूछनी थी, क्योंकि मेरा हेडफोन परेशान कर रहा था तो मैंने लेफ्ट हैंड से किया. मैं लेफ्ट हैंडेड ही हूँ, तो हमको न्यासा सिंबल
हैंड को ना ध्यान में रखते हुए सिर्फ क्लॉकवाइज ही चलाएंगे ना हम सर्कल्स, एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं है ना सही? क्योंकि जब लिखते हैं ना तो राइट से लिखती हूँ मैं, और मोस्टली वर्किंग के लिए मेरा हाथ लेफ्ट चलता है, तो मुझे सिर्फ अभी के लिए कंफ्यूजन हुआ तो मैंने पूछा। अभी सेम चीज भैरवी जी ने पूछा था और मैंने आंसर उनको ऑलरेडी दे दिया था, ठीक है ना? ओके, हाँ, तो दिस इज कम्प्लीटली ओके, दिस इज कम्प्लीटली नेचुरल। और जो चीज नेचुरल है ना उसके ऊपर ज्यादा आप लोगों को ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो जैसे कि whenever you are taking the negativity, उसके कुछ ना कुछ तो फीलिंग होगी ना, तो उसको यहाँ पे था, यहाँ पे नीचे लेके गए और नीचे लेके जाओ। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये प्रॉब्लम है कि जब मैं न्यासा सिंबल अपने ऊपर बना रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नदी में भंवर नहीं आता है, मेरे अंदर एक भंवर सा आ रहा हो और वो भंवर जो है नीचे सारी चीजें लेके जा रहा हो। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? नहीं गुरुजी, प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन वो उसमें सर्कल बहुत सारे बन रहे थे। मतलब 6 और 21 पे लिमिटेड नहीं था, ऐसा लगा था बहुत सारे कंटिन्यू कंटिन्यू, मेरा हाथ भी अपने आप ही तेजी से घूमता जा रहा था। मतलब मैं रोक ही नहीं पा रही थी अपने हाथ को। सो इज इट ओके सर? दैट इज ओके भाई, इसमें ना जो चीज प्रॉब्लम है ना उसको प्रॉब्लम मत बनाओ ना बाबा। हाँ, ओके ओके ओके। एक और चीज पूछनी थी गुरुजी, जितनी बार हम सिंबल ड्रॉ करते हैं उतनी बार हमें जो मंत्र है वो कंटिन्यू बोलते जाना है, बोलते जाना है? बोल बोल के जा सकते तो अच्छी चीज है। ओके, तो अभी तक तो आपने केवल सिंबल के यूज कर रहे हो, अभी तक सारे के सारे सिंबल को कैसे यूज करना अभी आया नहीं है। वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट वन सिंबल, हाउ टू यूज दैट सिंबल अभी, ठीक है ना? हाँ जी, बोलिए दीपा जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि सिंबल हम लोग कितनी बार ड्रॉ करना है हमें? एक बार या 21 बार या ऐसे कोई संख्या? मैंने इसका आंसर पहले की क्लास में ऑलरेडी दे चुका हूँ, मिनिमम 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 11 टाइम्स, उस तरीके से दैट शुड बी ऑड इन नंबर, ठीक है ना? सुष्मिता आप भी जी। जी सर, हाँ, सबसे पहले सर नमस्कार। मैंने देखा। एंड मैं सबके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज ऑनेस्टली मैं इस मंत्रा को कर रही हूँ एंड आई एम सीइंग फीलिंग लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड यू कैन से। एंड साथ में आज ही वन ऑफ माई क्लाइंट हैज सेड कि वो अपना मेरे फॉर्म को डोनेशन देना चाहता है, छोटे मोटे अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आई एम हैव सिंस व्हेन आई हैव जॉइंड एंड सारी साधनाज में ज्वाइन कर रही हूँ। आई एम रियली थैंकफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम रियली, दिस इज माई जेन्यून फीडबैक टू यू। एंड मैं इसको जहाँ बोलेंगे सुमी जी वहाँ मैं लिख दूंगी फीडबैक, और अच्छे से लिख दूंगी बिकॉज ये जेन्यून है, ऑनेस्ट है। मेरा रिव्यू जो मैं आपको दे रही हूँ, एंड आई एम फीलिंग लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। एंड मैंने पहले भी ये कोर्स किया है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, मेरे पैसे बिल्कुल ड्यून्ड हो गए। मैं बिल्कुल किसी भी गुरु की कोई भी शिकायत नहीं करना चाहती, उन्होंने भी अच्छा ही सिखाया होगा, लेकिन लामा फेरा क्या होता है वो मैं आपसे सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। एंड सर रही बात इसकी, अभी आपने खुद ही आंसर दे दिया, मुझे क्वेश्चन था, आपने बोला कि अभी सिर्फ हम देख रहे हैं और इसकी यूज आप मुझे बताएंगे, तो मुझे वही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सरिता जी। नमस्ते गुरुजी। मेरो यो राइट साइडको चेस्टमा पेन छ होइन, अनि यो मन्त्र र सिम्बल यो हिल गर्नलाई मैले कसरी युज गर्न सक्छु? अब चेस्टमा भन्नुले अहिले मात्र हो कि पहिलाबाट हो? पहिलाबाट नै हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, खरानी फुकेर 1-1.5 लगाउनु। वर्ष भयो। त्यही त, त्यो ठाउँमा खरानी फुकेर लगाउँदै गर्ने। अर्को कुरा चाहिँ खरानी फुकेर लगाइसकेपछि फेरि चक्कुले चाहिँ गरे जस्तो चाहिँ गर्ने, तपाईँको काट्दै आफूले फुक्दै गर्ने, काट्दै फुक्दै गर्ने, काट्दै फुक्दै गर्ने। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो पानी फुकेर पनि हजुरले चाहिँ रेगुलरली पिउँदै गर्नु भने अटोमेटिकली ठिक हुन्छ है सरिता जी।
प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जब से मंत्र कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे 2-3 चीज पूछनी थी। एक तो ये थी कि गो आउट प्लीज, कि मैं ना मंत्र सीख तो लिया, अब वो मंत्र में हर जगह पे मतलब मुंह से नहीं बोलूं ना, दिमाग में चलता रहता है। रात को स्विच ऑफ होता है 21 टाइम वाटर वाला करके, तो सुबह जब स्विच ऑन होती है ना, जैसे नींद खुलती है, तो जैसे किचन में काम करती हूँ, कोई और काम करती हूँ, इवन तो मैं बाथरूम में जाती हूँ तब भी वो मंत्र ना कंटिन्यू चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि हर जगह पे तो मुझे ये मंत्र नहीं बोलना, याद करना चाहिए ना। इतना लॉजिक कहाँ से लेके आते हो? तो मंत्र सीखते हैं तब ऐसे वहां पे भी मंत्र चलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना सर? नहीं है। मैंने क्या बोला, जब मंत्र सिद्ध होता है तब ऐसा होता है, अच्छा। ठीक है ना? तो एक तो खुशी होती है कि सर वो याद हो गया, इस बात की बड़ी खुशी होती है, फिर अपने आप को दोबारा बोलती हूँ यार दोबारा पढ़ो, तुम दोबारा और करो। साधक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर उस प्रकार के मंत्र सिद्ध हो रहे हैं, उनके लिए अच्छी चीज है कि आपके लिए हर बार चल रहा है तो मंत्र और ज्यादा पावरफुल बनता चला जाएगा आपके लिए। ठीक है। और सर अभी, है ना, हाँ वॉशरूम ठीक है सर। कर सकते हैं। और अभी जैसे मैं ये अपना न्यास वाला साइन कर रही थी ना, तो मुझे समझ नहीं आया, आपने बोला कि सारे इमोशंस को खत्म कर दो, बट मैं मेरे आंखों से अपने आप ही पानी आ गया। तो ये इमोशंस खत्म हो रहा था या इमोशन बढ़ रहा था, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि वो जब से नीचे डाल रहे कि थोड़ी देर बाद ना ऐसा होने लगा कि कुछ चीजें ऐसी, पता नहीं इमोशंस कुछ ऐसा हो गया कि आंखों से अपने आप पानी आने लग गई है। तो वो समझ नहीं आया, वो इमोशन बढ़ा है अंदर और ज्यादा बढ़ गया है या वो खत्म हुआ है? इतना लॉजिक ना कहाँ से लेके आते हैं मुझे समझ नहीं आता। पहले तो अभी 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 किया है, पहले 2-3 घंटे देख लो, 1-2 दिन देख लो, यानी सीधा डिफरेंस अगर बढ़ा है घटा है वो ऑटोमेटिकली आपको पता ही चल जाएगा। पिंकी अनम्यूट सर। जी सर, नमस्ते सर। मुझे सिर्फ अपना एक अनुभव शेयर करना है कि पहले दिन से आपने जब से लामा मंत्र दिया है तो लिटरली घर में बहुत ज़्यादा वास महसूस होता है भगवान बुद्ध का। पहले मैं मेंटली जुड़ी थी, लेकिन अभी ऐसे लगता है उन्होंने सच में टेक्निक भी दे दी आपके थ्रू। कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव ऐसे इफेक्ट्स दिख रहे थे, जैसे मेरे पैर में ना हमेशा एक प्रकार की सूजन रहती है जो टीचिंग लाइन में आ गई थी, तो वो आया, लेकिन मैंने तुरंत मेरे अगले क्षण मेरे मन में आया नहीं नहीं नहीं, रीड चक्र क्लीन हो रहा है, सर ने कहा है जो होगा आपको हिम्मत रखनी है। एंड लिटरली मंत्र मैंने पढ़ता रहा और वो ठीक हो गया सर, वो चला गया। एंड 2-3 काम हमारे अटके हुए थे वो भी कंफर्म हो गए जो कई वर्षों से नहीं हो रहे थे। हालांकि मैंने इस तरह से कोई मांग नहीं की भगवान से, बस अपना मंत्र बोल रही हूँ पूरी फेथ के साथ जैसे आपने कहा। और अभी वक्रतुंड करते वक्त बहुत ज्यादा भावुक हो गई। अभी जैसे किसी ने कहा आंसू आए आंख में, वही हुआ। बहुत सारा पेंट अप इमोशंस था, वो उतर रहा था। एंड आई सॉ माई सेल्फ कि एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर किसी कंटेनर में जैसे पानी होता है, तो पानी कैसे नीचे नीचे जा रहा है, वैसे उस तरह से वो इमोशन लिटरली नीचे फील हो जाते हुए फील हुए। और जब न्यासा किया सर, तो उसके बाद में वो लूपहोल्स भर गए, जैसे आपने कहा कोई कमी रह गई होगी वक्रतुंड से तो ये पूरा होगा। और फिर जो वाइब्रेशन फील हुआ, आई फेल्ट लाइट, and suddenly I got that joy back which I had lost a couple of minutes ago. तो भले शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस था, फिर भी इतना गहरा था सर। तो ये रोज गहराते जा रहे हैं और मंत्र सचमुच बहुत ही इफेक्टिवली हमें मैजिकली हेल्प कर रहा है। थैंक यू टू गॉड एंड थैंक यू टू यू सो मच सर। आज सुबह ना मुझे मेरे टुडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय फर्स्ट स्टूडेंट, ओके, 17 ईयर बैक, ओके। मैंने पहली बार किसी को मंत्र दिया था, एज अ डिसेबल बनाया था। एंड नाउ सो ही इज द सन ऑफ माय गुरु, मेरे अपने गुरु के बेटे हैं, ओके। आज उनका सुबह कल आया था, तो मैंने उनको कुछ बच्चों की मंत्र सुनाया, जो कुछ बच्चों ने मुझे मुझे भेजा था, लामा फेरा मंत्र। सो देयर आर सो मेनी मम्मीज, ओके, तो उन्होंने अपने बच्चों को शेयर किया था। और वो करते करते ना, सो ही जस्ट आई मीन वेंट टू द ट्रांस। तो अपने भी गुरु के पुत्र होते हुए मुझे मार मार के शिकायत बोल रहे थे। This mantra is that much powerful. Even now, even after doing 17 years, he is continually doing this mantra. मेरे अपने ही गुरु के पुत्र हैं, उनके ही बेटे हैं, ठीक है ना। अगर वो करते हैं, अगर वो मैं करता हूं,
I think you should do. I'll take 2 or 3 things. Okay, हमारे पास केवल 5-10 minute बाकी. Reena Rawat ji, okay, understand one very simple thing. Whenever you are doing, okay, 4 a.m. diya on the name of Devi Kastika Dika, rule number, there is only one rule, that the diya should be made by the ghee, काव घी, दैट्स ऑल. बस उतना ही है कि वो गाय का घी हो तो अच्छा है, ठीक है ना. अदरवाइज देर इज नो रूल, देर इज नो रूल कि आपको नहाना भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको कपड़े चेंज करना है, ऐसा भी नहीं है. ओके, ठीक है. आपको आई मीन बालों को क्लियर करना, ऐसा भी नहीं है. ओके, आप जैसे हो, आप सूतक में हो, मेंस्ट्रुएशन में हो, पीरियड में हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. देर इज नो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन. Yes, Abhijit ji, this mantra will work. So that is the reason why today's I'm clearing about this concept. Ki most of the people, they are not affected by the black magic, but the anxiety that they had created by themselves. बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, ओके, वो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं प्रॉब्लम लाइफ में. ओके, क्योंकि they don't take the responsibility of life and they don't come out of that situation of their life. हुआ था कुछ 10 साल पहले, अभी तक वहीं पे पड़े हुए हैं. किसी ने कुछ बोल दिया था पहले, किसी ने कुछ कर दिया था 20 साल पहले, अभी तक वहीं पे है. और बोलते कि मेरे साथ ना इतना ना इंसाफी हुआ, ये हुआ, वो हुआ. अयो, उनके पास इतनी ज्यादा रीजन है ना, बट फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए रीजन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. यस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हाँ जी भास्कर जी बोलिए. हाँ सर, सर एक डाउट था सर, ये जब हम न्यास बनाते हैं तो ये थ्रोट चक्र से ही स्टार्ट करना है ना सर? आप कहीं से भी कर सकते हैं सर. मैंने क्या बोला, दैट कैन बी स्टार्टिंग फॉर 21 टाइम्स. अगर उसको आप ज्यादा से ज्यादा फील हो रही तो ऊपर से भी जा सकते हैं सर. मतलब क्राउन चक्र से भी स्टार्ट कर सकते हैं? उससे ऊपर से भी जा सकते हैं. कभी कभी आपको लगता है ना कि ऊपर बहुत बड़ा सा सामान रखा हुआ है, भारी सा कुछ रखा हुआ है, तो ऊपर से उसको खींच के नीचे लेके आ जाइए. ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर. हाँ जी बोलिए ममता जी. प्रणाम गुरुजी. पहली चीज तो ये कि मैं आपकी आगे और जो भी साधनाएं चलेंगी उसमें मैं रहना चाहती हूँ, तो इसलिए आप मेरा ध्यान रखिएगा, कृपा बनाए रखिएगा कि ताकि मैं वो वाली क्लासेस भी सारी अटेंड कर सकूँ. दूसरा, एक ये 25,000 वाला जो है वो मैं आपको इससे बात करूंगी इस बारे में. और एक और क्वेश्चन ये है कि मेरी लव मैरिज हुई थी और 12-13 साल से ऊपर हो गया. मेरा ब्रदर मुझसे बात नहीं करता और मेरे इन लॉज और ये कोई जा नहीं पाते. मैं कभी कभी जाती हूँ तो वो जब नहीं रहता तभी मैं मिलने जाती हूँ मम्मी से या पापा से. तो मैं कैसे कनेक्टिविटी बना सकती हूँ, मतलब मैं बहुत चाहती थी उसको और मेरा बड़ा ब्रदर है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये कुछ उपाय बता सकते हैं. मैं बहुत सालों से परेशान हूँ. अभी तो ना आयुषी सिंबल आना बाकी है. आयुषी सिंबल आने के बाद बात करते हैं, ठीक है ना. अभी 2 सिंबल और बाकी है इसमें. यस, नमस्ते सर. नमस्ते गुरुजी. हाँ जी गुरुजी, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल for this beautiful knowledge which you are giving to everyone. My question is, actually my problem is when I see everyone sharing their experiences, मैं जब ये मंत्र और सिंबल ड्रॉ करती हूँ, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ फीलिंग नहीं होती. I mean, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि सिंबल ड्रॉ करते समय bring your emotions down, you people are doing it like you're not showing your feelings. So मेरे को वो फीलिंग लाइक वो इमोशंस आते ही नहीं है. मैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो
एक्सपीरियंसेस मुझे फील क्यों नहीं होते हैं? देखो, पहली चीज तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, ओके, समझ जाना हमें, दिस इज कम्प्लीटली ओके। मुझे भी पहले फीलिंग नहीं आता था, पर जब भी फीलिंग ना भी आवे ना, तब भी हम कल्पना कर सकते हैं कि फीलिंग आ रही है। अभी के लिए मैं उतना बोलूंगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है आज डिस्कस करने के लिए। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अ पीपल, ओके। मे बी शायद अगर किसी दिन मेरे पास टाइम होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो कैटेगरी क्या क्या है, और आप अपने आप को उस कैटेगरी से ना जो एक कैटेगरी आपके ऊपर मैच होगी। एंड सो दिस इज कम्प्लीटली ओके, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, कि कम्प्लीटली नेचुरल है। और आप लोगों को जिस तरीके से मिलता है वो दूसरे को तरीके से इमोशंस के रूप में नहीं मिलता। इसलिए तो मैंने क्या बोला था, गेड़े हो, ओके। आज मैंने कितने लोगों को बोला कि टाइगर मत पढ़ो, गेड़ा बनो। पर आप पहले से गेड़ा हो तो आपको यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट, ओके, ठीक है ना। सो दिस विल बी द सेकंड लास्ट थिंग। हाँ जी, मालविका जी। नमस्ते गुरुजी। सर, ये जो हम आज अभी नासा सिंबल जब बना रही थी मैं अपने आप पे, और उसको जब मैं नीचे थ्रो कर रही थी, तो है ना सर, एक ब्रेन में है ना एक टक ऐसी आवाज आती है। मतलब नीचे से हम ऐसे ड्रॉ करके ऐसे कर रही, तो ब्रेन में एक टक आवाज आती है। तो सर वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो बार बार प्रिंट हो रहा था सर, ऐसे आवाज। मतलब आई कुड फील द नॉइज इन द ब्रेन, टक 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 ऐसे। ठीक है, दिस इज कंप्लीट ओके। पहले से तो इसका नाम नासा नहीं है, न्यासा है, ठीक है ना, ओके। तो कहीं फिर नासा वाले हमारे फोन ना लगा दे, ठीक है, ओके। सो दिस इज नासा सिंबल, एंड एक कभी कभी हो जाती है, ये बड़ी चीज नहीं है। सो आई विल टेक अ लास्ट वन, यस रूपाली जी। नमस्कार सर। सर मेरा ये सवाल है, जैसे मैं नासा सिंबल बना रही थी तो लास्ट में जब मैं फीलिंग्स अपनी रिलीज कर रही थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम, जैसे इरिटेशन हो रही थी। तो ये चीज मतलब वो लेट गो हो रही है चीज, तो इसीलिए हो रहा है? हाँ, बस यही सवाल है। लेट गो भी हो रहा है, प्लस ऑन द सेम टाइम इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ओके। नेगेटिविटी आपसे ना दूर जाना ही नहीं चाहती, तो ना वो आपको एक एग्रेशन क्रिएट कर रहा है कि प्लीज मुझे फेंको मत, ओके, मुझे फेंको मत वहां से। तो आपको और ज्यादा करना है, जितना गुस्सा आना है आने दो, मगर करते रहना है, ठीक है ना। So it is a very nice meeting with all of you today. Tomorrow, I think there is a eclipse. Okay, eclipse, and tomorrow is especially a day of a Shani Jayanti. कल हम स्पेशली उस शनि जयंती के बारे में करेंगे, प्लस शनि से रिलेटेड पूजा भी होगी, प्लस आप लोगों की जो शनि से रिलेटेड अगर ग्रह नेगेटिव है तो उस ग्रह को कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है, और आप लोगों को प्रैक्टिकली कर लेंगे फिर कल, ठीक है ना। तो आई जस्ट होप टू सी यू टुमारो। नमस्ते।